Air, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to. جس وقت پائلٹ نے یہ الفاظ بولے اس وقت یہ پیسنجر ایئر کرافٹ کراچی کے اوپر صرف 600 فیٹ کی اونچائی پر تھا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کڑکتی گرمی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں بند تھا۔ دوپہر کے 2:35 ہو رہے تھے اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد کراچی میں ایک ایمرجنسی سچویشن پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PK 8303 کے پائلٹ نے میڈے کا ڈسٹرنس سگنل دے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پائلٹ بے بس ہو چکا ہے اور جہاز اب اس کے کنٹرول سے باہر جا چکا ہے۔ یہ سگنل دینے کے چند ہی سیکنڈ بعد کراچی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ لرز اٹھتا ہے اور آسمان کالے دھوئیں کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ ایئر بس A303 ماڈل کالونی کی گھنی آبادی کے اوپر ایئرپورٹ سے صرف 430 میٹر پہلے کریش کر جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ پلین میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا۔ پھر آخر یہ حادثہ ہوا تو ہوا کیسے؟ پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولر کے درمیان کیا بات چیت چل رہی تھی؟ صرف چند منٹ پہلے اسی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی پہلی کوشش کیوں اور کیسے ناکام ہوئی؟ اور 3 سال تک چلنے والی انویسٹیگیشن میں کون سے راز کھل کر سامنے آئے؟ ان سب سوالوں کے جوابات ہم جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، 22 مئی 2020 والے دن فلائٹ A303 کو لاہور سے 1 بجے ٹیک آف کرنا تھا اور اس کی منزل تھی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ یہ ایک چھوٹی فلائٹ تھی جس کو تقریباً 1 گھنٹے 45 منٹوں میں اپنی منزل پہ لینڈ کرنا تھا۔ اس میں ٹوٹل 91 پیسنجرز اور 8 کرو ممبرز موجود تھے۔ آج کے دن موسم بالکل پرفیکٹ تھا، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی۔ پائلٹس کی بات کی جائے تو فلائٹ کیپٹن سجاد گل، جن کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جوائن کیے 24 سال گزر چکے تھے اور ان کے پاس 18,000 گھنٹوں کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ فرسٹ آفیسر 33 ایئرز کے عثمان اعظم تھے، جن کو PIA میں 10 سال گزر چکے تھے۔ یہ 16 سال پرانا ایئر بس A320 ایئر کرافٹ تھا جس میں 2 CFM56 ٹربو فین انجنز لگے تھے اور ان دونوں انجنز کا اس سٹوری میں بہت اہم کردار ہے۔ ایئر کرافٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں تھا، جس کو ایئر بس کی ریکمنڈیشن کے حساب سے مینٹین بھی کیا جا رہا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر تمام تیاریاں پوری کرنے کے بعد 1:05 پر جہاز ٹیک آف کر گیا۔ کچھ دیر بعد فلائٹ A303 34,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی، جس کو کروزنگ الٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اور اگلے 45 منٹوں تک اسے اسی الٹیٹیوڈ پر رہنا تھا۔ 1:24 پر جہاز نوابشاہ کو کراس کر رہا تھا اور اسی وقت اس کو کراچی کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، یعنی پچھلے کنٹرول ٹاور کا رابطہ ختم ہو کر آگے کی ذمہ داری کراچی کی تھی۔ کراچی کنٹرول نے پائلٹس کا ویلکم کیا اور ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کا کہا۔ عام طور پر اس روڈ پر اڑنے والے جہاز نوابشاہ پہنچ کر کراچی ٹاور سے کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کس روٹ سے کراچی آنا ہے، کیونکہ نوابشاہ سے کراچی کے کئی روٹس موجود ہیں۔ یہ سارے روٹس فلائٹ کے کمپیوٹر میں بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یعنی نوابشاہ سے جو بھی راستہ اسائن کیا جاتا ہے، پائلٹس اسے اپنے فلائٹ کمپیوٹر میں سیو کر لیتے ہیں اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی اپنا الٹیٹیوڈ اور سپیڈ کم یا زیادہ کرتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ PIA فلائٹ A303 کو پہلے نوابشاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا، جو کہ باقی راستوں کی بنسبت زیادہ بڑا راستہ ہے، لیکن بعد میں پائلٹ کے زور ڈالنے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا، یعنی کمپیوٹر سمجھ رہا تھا کہ نوابشاہ 2A کا راستہ سلیکٹڈ ہے، جبکہ اصل میں یہ لوگ دوسرے راستے سے آ رہے تھے۔ نوابشاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فیٹ تھی اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فیٹ تک ہونا چاہیے تھا۔
अब जाहिर है जहाज फौरन तो 34,000 फीट से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाबशाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेज़ी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में दूसरा रास्ता सिलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को दूसरे रास्ते से लेकर आ रहे थे जिसमें ज़्यादा तेज़ी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ ये कि मकली के मुकाम पर जहां जहाज को 7000 फीट पर होना चाहिए था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रेडार पे PKA-303 की ऊंचाई ज़्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज़्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब ये तकरीबन 2400 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे आ रहा था, यानी एक मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी, वो अब 6,000 रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पर रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर एमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6000 फीट्स पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3000 फीट्स पर होना चाहिए। उनको दोबारा से चक्कर लगाने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज़ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और इसे कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने उनको दोबारा से चक्कर लगाने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में दूसरा रास्ता सिलेक्टेड था, जबकि वो किसी और रास्ते से आ रहे थे। इस पर उनको ये कहते भी सुना गया कि ओ ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड ख़त्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड ख़त्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज़ पर नज़र रखना थी, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने अभी तक लैंडिंग गियर नहीं खोला। PKA-303 बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो ज़मीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक चक्कर लगा लेना चाहिए, जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से कैबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक होने लगा। कैप्टन, जो पहले ही अलार्म की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ,
घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लीवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि इस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गए। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड तेजी के साथ कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और जहाज की स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK-8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पर बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी कि उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहली बार में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह ये बताई गई कि दोनों पायलट्स इस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। इसके बाद रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि उन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों उनको इतनी आज़ादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहे। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।